Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start journal linear group. Now, what is journal linear group? Actually, journal linear group is group of matrices, group of non-invertible matrices. Now, let us look at say G of matrices with real numbers as entries under matrix multiplication. We need matrices which can be arbitrarily multiplied together. So we need to restrict our set to n by n square matrices. Okay? Suppose you know that in a group we need one order pair where G is any non-empty set and steric is any binary operation. Here G is a non-empty set, but in this set every element is n by n square matrix. Okay, if we allow non-square matrices, then we may find elements that could not be multiplied together. That's why we are taking n by n square matrices. Okay, now we have now check this non-empty set is form a group or not. Now, number first property, Closure means first of all, we are checking this multiplication is binary operation on G or not. But you already know that G is set of G is non-empty set whose each and every entry from square n by n square matrices. Then multiplication of two square matrix is again square matrix. It means G is closed under matrix multiplication since all entries are purely real numbers. Again, associativity, multiplication with real matrices is associative. And identity, the identity element is also n by n matrix because identity matrix all element in diagonal is 1 is also square matrix. This is identity matrix. This also belongs to G. And to have inverse, okay, now to have inverse in each element, to have inverse, the matrix must have non-zero determinant because these all are the matrices. Their determinant must be non-zero. That's why these are the non-singular matrices. What is definition of non-singular matrices? A matrix whose determinant is not equal to zero is called non-singular matrix. A matrix whose determinant zero is called singular matrix. Okay. Now, thus all invertible matrices in G has inverse also present there. It means A into A inverse equal to identity matrix. A is any singular matrix, then inverse also singular matrix. Okay, it means all invertible matrices in G has inverse. It means journal linear group. This type of group is a special name is journal linear group. Journal linear group means G form a group of invertible non-n by n matrices under matrix multiplication, which is called journal linear group, denoted by GLN over R. Here GL means journal linear, N means
Order of the matrices, or means whose entries from real number. Order of the matrices is n, and that's why it's called GLN of our group. Sometime if matrices is 2 by 2, then we say this GLN GL2. If order of the matrices is 3, then GL3. If order of matrices is 4, then GL4. If entries from Z, then you write GL of Z. If entries from Q, then you write GL of Q. If entries from complex number, then GLC. Okay, where R lets us know that matrix entries are real number, and N tells us the size of the matrices. Simply, जनरल लीनियर ग्रुप क्या है? जनरल लीनियर ग्रुप एक मैट्रिसेस का ग्रुप है, क्योंकि ग्रुप की डेफिनेशन क्या है कि एक हमारे पास ऑर्डर पेयर होता है, उसमें एक जी नॉन एम्प्टी सेट होता है, और इस डायरेक्ट बाइनरी ऑपरेशन होती है जो जी पे डिफाइन होती है। यहाँ पर जी हम ऐसा सेट, कौन सा सेट ले रहे हैं? मैट्रिसेस का सेट ले रहे हैं। कौन सी मैट्रिसेस का? जो स्क्वायर मैट्रिसेस हो और वो सारी इन्वर्टिबल हो। इन्वर्टिबल मींस उनका डिटरमिनेंट जीरो, मींस हम ऐसी कलेक्शन करें। कौन सी कलेक्शन होगी? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की कलेक्शन करें, उसका ऑर्डर क्या हो? जनरल एन हो, उसका हम सेट बनाए, उसको हम जी कह रहे हैं। और बाइनरी ऑपरेशन हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं। तो ये जो ऑर्डर पेयर बन गया जी, और जी विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये फॉर्म करेगा ग्रुप, क्योंकि ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। क्लोजर भी है, एसोसिएटिव भी है, आइडेंटिटी भी है, इनवर्स भी है। तो इस ग्रुप को हम कहते हैं जर्नल लीनियर ग्रुप। हाँ, अब मैट्रिक्स के अंदर जो इसकी इंट्रीज हैं वो कौन सी होंगी? इसमें हम रियल नंबर ले रहे हैं तो जीएल आर होगा। अगर आप इंटीजर ले लें तो जीएल जेड होगा। अगर आप कॉम्प्लेक्स ले लें तो जीएल सी होगा। और अगर आप सारी मैट्रिसेस ऑर्डर 3 बाय 3 की लेंगे तो जीएल 3 हो जाएगा, 2 की लेंगे तो 2 होगा। ओके। और जर्नल लीनियर ग्रुप क्या होता है? नॉन कम्यूटेटिव होता है। और आपको पता है इन मैट्रिक्स अलजेब्रा ए बी नॉट इक्वल टू बी है, तो नॉन कम्यूटेटिव है। ठीक है। एक दूसरा ग्रुप हमारे पास है स्पेशल लीनियर ग्रुप, जिसको हम एस एल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगेन ये ग्रुप है, इट मींस ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। अगेन हमारे पास कोई ग्रुप जी है, नॉन एम्प्टी सेट जी है, और हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है। अब ये कौन सा नॉन एम्प्टी सेट है? हम कलेक्शन करेंगे ऐसी मैट्रिसेस का जिसका डिटरमिनेंट 1 हो। जी क्या कैसा सेट है? ऐसी मैट्रिसेस का जिसका डिटरमिनेंट क्या हो? 1 हो, उनका हम सेट बनाएंगे और उसके साथ उसको हम नाम दे देंगे जी। और बाइनरी ऑपरेशन क्या रखेंगे? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अगेन वो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसे ग्रुप को हम कहेंगे स्पेशल लीनियर ग्रुप। एक्चुअली स्पेशल लीनियर ग्रुप सब ग्रुप होता है जनरल लीनियर ग्रुप का, क्योंकि जनरल लीनियर ग्रुप में सारी इन्वर्टिबल मैट्रिसेस होती है, मगर स्पेशल लीनियर ग्रुप में सिर्फ वो मैट्रिसेस होती है जिसका डिटरमिनेंट 1। ओके, इसको हम एस एल एन कहेंगे। ए व्हाट इज एन? ठीक है, तो व्हाट इज एन? एन का मतलब है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस, और इंट्रीज जो होंगी वो सेम होंगी। ठीक है, ओके। अब इसको हम यूं भी कह सकते हैं एस एल एन, और इसका मतलब क्या हुआ कि इंट्रीज फ्रॉम रियल नंबर, तो एस एल एन सी भी हम कह सकते हैं। और ये क्या होता है? सब ग्रुप होता है जर्नल लीनियर ग्रुप का। जर्नल लीनियर ग्रुप इज स्पेशल लीनियर ग्रुप। अच्छा, दूसरा हमारे पास ग्रुप होता है क्वार्टरनियन ग्रुप। व्हाट? क्वार्टरनियन ग्रुप। Q8 से भी उसको रिप्रेजेंट करते हैं। Q8 से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 8 होता है। वो कौन से एलिमेंट होते हैं? एक होता है प्लस आई माइनस आई 2, प्लस जे माइनस जे 4, प्लस के माइनस के 6, और प्लस ई और माइनस ई। ई मीन्स आइडेंटिटी।
तो टोटल 8 एलिमेंट का ये सेट होता है और ये क्या अगेन ग्रुप बनाता है, इसको हम कहते हैं क्वार्टरनियन ग्रुप। ठीक है, अब क्वार्टरनियन ग्रुप में क्या है, हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है। अब क्या है कि आई को जे से जब मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एलिमेंट्स हमारे पास, तो आई को जे से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, के मिलेगा। अगर इसका ये भी क्या नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप है, अगर इसका ऑर्डर चेंज करेंगे आई जे इसके, अगर जे आई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस जे आई इक्वल टू के। अगेन जे के इक्वल टू आई और जे के इक्वल टू माइनस के जे। अगर एक कम्यूटेटिव होता तो जे के इक्वल टू के जे होता, और आई स्क्वायर इक्वल टू जे स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। ये सारे क्या है, इक्वल है माइनस ई के। ई यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आइडेंटिटी को। आइडेंटिटी जो ग्रुप में होती है, मींस किसी भी सेट के एलिमेंट के साथ बाइनरी ऑपरेट हो, वो एलिमेंट चेंज ना हो। तो इट मींस आई जे के तीन एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें, वो माइनस आइडेंटिटी के होंगे, या आई स्क्वायर जे स्क्वायर के स्क्वायर ये माइनस आई के होंगे। ये प्रॉपर्टी है क्वाड्रेटिक ग्रुप की। अगर ग्रुप रिप्रेजेंटेशन में करें कि क्यू एट इक्वल टू ई आई जे के ई स्क्वायर इक्वल टू ई, क्योंकि अब देखें ई क्या आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी को स्क्वायर करेंगे तो आइडेंटिटी आएगी। जैसे वन है, वन इंटू वन वन ही होगा, जैसे जीरो है, जीरो प्लस जीरो जीरो ही होगा। और अगेन ई स्क्वायर आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर एंड के स्क्वायर इक्वल टू minus I. Here is a missing minus. Here you write minus E. Okay. I square J square K square equal to minus E. And this is non-abelian group. Okay. Means quaternion group क्या होता है, जिसमें 8 एलिमेंट्स होते हैं, और कौन से होते हैं, प्लस माइनस आई प्लस माइनस जे प्लस माइनस के, या आप यूं भी कह सकते हैं प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी। एंड थर्ड क्या होता है, प्लस माइनस ई। ई क्या होता है, दिस आइडेंटिटी एलिमेंट, और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ए ई आई स्क्वायर जे स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल टू माइनस आई, और अगर आइडेंटिटीज को स्क्वायर करेंगे तो वो सेम एलिमेंट आएगा। ठीक है, अगर इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास क्या है, टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं, 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे ई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई क्या है, दिस, जे के, अगर हम माइनस करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस जे क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, के क्या होगा, हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये हम चेक करें कि ये ग्रुप है या नहीं है। अब देखिए इसमें प्रॉपर्टी आप इजीली चेक कर सकते हैं, आई जे इक्वल टू माइनस जे आई इक्वल टू के। अब आई और जे को आप मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आएगा, के आएगा। यू कैन इजीली चेक, या आप आई जे को चेक करेंगे, आई जे और जे आई फाइंड करें तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के नेगेटिव टू ईच अदर। ठीक है, और इजीली इसकी सारी प्रॉपर्टी आप चेक कर सकते हैं कि क्लोयर भी होगा, कोई भी दो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। देखें ए आई जे करे तो के मिल रहा है, जे के करे तो आई मिल रहा है, के आई करे तो जे मिल रहा है, अगर स्क्वायर करें तो माइनस ई मिल रहा है। तो एक क्लोयर भी है। और मैट्रिक्स अलजेब्रा मल्टीप्लिकेशन ये क्या होता है, ये एसोसिएटिव भी है, इसमें आइडेंटिटी भी है, ये री आइडेंटिटी, और हर एलिमेंट का इनवर्स भी है। ठीक है, तो which shows that GL2 over C is a quadratic group। अब देखिए ये सारी मैट्रिक्स क्या थी, 2 by 2 ऑर्डर की थी, इसके लिए हम इसको लिख रहे हैं GL2, और इसकी इंट्रीज क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके लिए हम C कर रहे हैं। तो which shows that GL2 over C is a quaternion group, and moreover E is the identity element and E commute। और आपको पता है कि E जो एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कम्यूट होता है every element of G। ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट उसके साथ कम्यूट होगा। मींस आइडेंटिटी एलिमेंट को आप लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें या राइट से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या है कि उसमें ऑलवेज सेम आएगी।
ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास है क्लाइन फोर ग्रुप। अब क्लाइन फोर ग्रुप क्यों कहते हैं? क्योंकि एक तो नाम, इसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं, 4 एलिमेंट्स, ए बी सी एंड आइडेंटिटी। और इसका क्लाइन क्यों रखा हुआ है? क्योंकि ये जो ग्रुप बनाया था जर्मन मैथमेटिशियन फ्लिक्स क्लाइन, he is consist of 3 element A, B, C and fourth is identity, उसको हम कहते हैं दिस E। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि एवरी एलिमेंट इज इट्स ऑन इनवर्स, हर एलिमेंट खुद का इनवर्स है। जैसे ए स्क्वायर, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ए स्क्वायर आइडेंटिटी के बराबर होता है। बी इंटू बी, बी स्क्वायर इक्वल टू ई। सी, सी इंटू सी मीन सी स्क्वायर इक्वल टू ई। और अगर दो डिफरेंट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें थर्ड मिल जाएगा। जैसे ए मल्टीप्लाई बाय बी तो क्या मिलेगा? सी। अगर बी मल्टीप्लाई बाय ए तो सी, बी मल्टीप्लाई बाय सी तो ए, सी मल्टीप्लाई बाय ए तो बी। तो ये क्या है? कम्यूटेटिव ग्रुप है क्लाइन, और हर एलिमेंट खुद का इनवर्स है, और किसी भी दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें तीसरा एलिमेंट मिल जाएगा। ये क्लाइन फोर ग्रुप है, और ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी इजीली इसमें सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी होल स्क्वायर, बिकॉज ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा? सी। और ये क्या हो जाएगा? सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी के बराबर आ गया, जो हम यहाँ पे देख के आए ऊपर। ओके। और यहाँ पे भी आप देख लें, प्रोडक्ट ऑफ ए बी क्या होगी? सी, सी इंटू सी, सी स्क्वायर, तो इक्वल टू अगेन ई के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो क्लाइन, what Klein four group is abelian group or commutative group having 4 elements, is identity, and other 3 elements are A, B, C. Okay. Or this is non-cyclic group. We will discuss further what is cyclic group and non-cyclic group. Now, take example of Klein four group in 2 by 2 matrices. And operation matrix, here binary operation is matrix multiplication. Define a subgroup of general linear group. There we have 4. Suppose you have G is a non-empty set whose non-empty set one element is 2 by 2 matrix, second element, third and fourth. Okay, here binary operation defined is matrix multiplication. Suppose you say this is A, this is B, this is C, this is E. ठीक है। अब कोई हम G सेट ले रहे हैं, ठीक है, उसके एलिमेंट क्या है? 4 एलिमेंट है। वो हर एलिमेंट किस फॉर्म में है? मैट्रिक्स फॉर्म में है। और इसमें बाइनरी ऑपरेशन क्या है? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। सपोज कर इसका नाम ए दे दें, इसका बी दे दें, सी दे दें, और अच्छा ये ई है, सॉरी, आइडेंटिटी ए बी एंड सी। ठीक है, ये नाम दे दिया हमने। अब ये देखें क्लाइन ग्रुप है या नहीं, इजीली हम चेक कर सकते हैं। अब ए बी को मल्टीप्लाई करें और बी ए को करें तो रिजल्ट सी आएगा। बी सी को करें, यहाँ सी बी को करें तो ए आएगा। सी ए को करें या ए सी को करें तो बी आएगा। अगर ए को स्क्वायर करें, बी को करें या सी को करें, सबकी रिजल्ट किसके पास आएगी? मैट्रिक्स के आएगी। तो इट मींस, तो इसमें एक लोअर भी है, एसोसिएटिव तो होती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, आइडेंटिटी भी है इसमें। आइडेंटिटी क्या है? ई। और हर एलिमेंट का इनवर्स वो इटसेल्फ है। ए का इनवर्स ए है, बी का बी है, सी का सी है। इनवर्स की डेफिनेशन क्या है? अगर ए को हम ऐसे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट आइडेंटिटी आए, ए को ए के साथ करेंगे तो आइडेंटिटी आ जाएगी इस केस में। तो इट मींस ये हमारे पास ग्रुप हो गया। अब एक थ्योरम है कि सेट ऑफ इंटीजर मॉड्यूलो एम फॉर्म एबलियन ग्रुप मीन z m plus f. This is a modular addition. It is a set of integers modulo m form abelian group under addition, and here m belongs to z greater than 1 under addition of modulo m. अब ये क्या है? एक्चुअली दिस इज इंटीजर मॉडुलो m, दिस सेट ऑफ इंटीजर। अब सेट ऑफ इंटीजर में कौन से एलिमेंट है? 0 1 2 अप टू m-1 है। ऊपर से क्या है? बार है।
एक्चुअली ये जीरो एक्चुअली एक एलिमेंट नहीं है, ये जीरो क्या है, सेट ऑफ इंटीजर को पार्टीशन कर रहा है। कितने कितने पार्टीशन कर रहा है, एक पार्टीशन। अब एक हमारे पास पूरा बड़ा एक जेड है, ठीक है, अब उसको पार्टीशन कितने हिस्सों में करना है, एम हिस्सों में करना है। तो एक जीरो की पार्टीशन हो गई, ये वन क्या है, एक वन की पार्टीशन हो गई, टू क्या है, एक टू की पार्टीशन हो गई, थ्री की पार्टीशन अप टू एम माइनस वन पार्ट। टोटल पार्टीशन क्या होगी, जीरो से शुरू होगी एम माइनस वन तक। इट मीन्स जेड एम का मतलब है जेड एम को एम पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, पार्टीशन करते हैं। तो हर पार्टीशन में ये जो 0 1 2 है, ये हर कोई एक अपना अपना सेट बनाएगा with respect to addition. Now it is established the modular addition define. अब वो modular addition define कैसे होगी, a m plus b m equal to a plus b m। अब a b क्या है, कोई भी एलिमेंट है z के। अब क्लोयर प्रॉपर्टी क्या है, अब दो कोई भी एलिमेंट आप ऐड करें इसमें 0 + 1 तो रिजल्ट क्या आएगा 1, वो z में ही आएगा। 2 + 1 क्या आएगा 3, 3 भी इसमें होगा। तो क्लोयर लॉ होल्ड हो रहा है। एसोसिएटिविटी, अब देखें यहाँ पर हमने एसोसिएटिविटी फाइंड की है, तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स आइडेंटिटी, आइडेंटिटी भी है क्योंकि जीरो है इसमें, तो जीरो किसी भी एलिमेंट से ऐड करेंगे तो वो हमारे पास सेम एलिमेंट आएगा, ठीक है। और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनवर्स भी इसमें है क्योंकि हमारे पास क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है, ए है तो माइनस ए भी क्या करेगा, एलिमेंट होगा। तो ए माइनस ए करेंगे तो जीरो होगा। तो मीन्स a minus x is integer whose congruence is minus a, whatever x b। और एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रहा है कि a प्लस बी करें या b प्लस a करें, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। और इसी तरह से सेट ऑफ इंटीजर मॉड्यूलो p फॉर्म एबलियन ग्रुप ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूलो p सेट ऑफ प्राइम नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर जेड पी हो, p क्या है, कोई भी प्राइम नंबर विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, मॉड्यूलर मल्टीप्लीकेशन, ये भी एबलियन ग्रुप बनाएगा। अब जो भी प्राइम नंबर है, जैसे जेड जेड अगर हम 5 रख लें, 7 रख लें या Z3 रख लें, तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है, जो सेट ऑफ इंटीजर है उसको पार्टीशन हम 3 में, 5 में या 7 में कर रहे हैं, अगर हम मल्टीप्लीकेशन रखेंगे तो वो भी क्या बनाएगा, ग्रुप बनाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम आगे कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी हम बनाते हैं कैली टेबल। ठीक है, अब कैली टेबल क्या है, कोई भी हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट होता है उसकी हम कैली टेबल बनाते हैं। तो वो कैली टेबल क्या है, अब देखे कोई भी अगर हमारे पास ऊपर हमने क्लाइंट ग्रुप किया है, अब क्लाइंट ग्रुप की अगर हम कैली टेबल बनाएंगे, ये स्टार क्या शो कर रहा है, बाइनरी ऑपरेशन को। अब स्टार के राइट पे जो फर्स्ट होगी उसमें हम एलिमेंट रखेंगे किसके, नॉन एम्प्टी सेट के। अब क्लाइंट ग्रुप में कौन से एलिमेंट थे, ई ए बी एंड सी। ठीक है, रख लिए। फिर इस बाइनरी ऑपरेशन के नीचे जो कॉलम है उसमें वो सेम एलिमेंट यहाँ भी रखेंगे, पहली रो में रखेंगे और पहले कॉलम में रखेंगे, और उनके बीच में जो इंटरसेक्शन हो रहा है वहां पे बाइनरी ऑपरेशन रखेंगे। ठीक है, कैली टेबल कैसे बनेगी ये बता रहा हूँ मैं आपको। अब क्या है, ई को ई के साथ क्या करेंगे, ये बाइनरी ऑपरेट करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, ई स्टार ई। फिर ई को सेकेंड एलिमेंट के साथ करेंगे तो ई स्टार के, ई को थर्ड के साथ करेंगे ई स्टार बी, ई को फोर्थ के साथ करेंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट खत्म। अब सेकेंड आ जाए, ए स्टार ई, देन ए स्टार बी, ए स्टार सी। ठीक है, सेकेंड एलिमेंट खत्म। थर्ड, ई स्टार ई, ई स्टार ए, बी स्टार बी एंड बी स्टार सी। थर्ड खत्म। फोर्थ, सी स्टार ई, सी स्टार ए, सी स्टार बी एंड सी स्टार सी। ये कैली टेबल हो गई। अब कैली टेबल से क्या बेनिफिट होता है कि हम इजीली यहीं पे चेक कर लेते हैं कि एलिमेंट्स का इनवर्स कौन सा है, आइडेंटिटी कौन सी है, क्लोजर है या नहीं है। तो हमें सारी प्रॉपर्टी चेक करनी नहीं पड़ती। अब देखें आइडेंटिटी की क्या प्रॉपर्टी है कि आइडेंटिटी किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगी तो वो एलिमेंट चेंज नहीं होगा, और अगर कोई भी दो एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे तो अगर वो आइडेंटिटी के बराबर है तो वो उसका इनवर्स होगा। ठीक है, ये पहले आप देख लें कैसे कैली टेबल बनाएंगे।
फर्स्ट रो में एलिमेंट रखेंगे जितने भी होंगे, सेकंड और फर्स्ट कॉलम में रखेंगे, बीच में जहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है वहां पे बाइनरी ऑपरेशन रख के आप उसको सॉल्व करेंगे। ओके, अब देखें, रिप्रेजेंट द ग्रुप। जी क्या है, कोई ग्रुप है, मल्टीप्लीकेशन बाइनरी ऑपरेशन बाय कैली टेबल व्हेन जी क्या है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। आपको याद होगा फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी कौन से एलिमेंट होते हैं, वन माइनस वन आयोटा माइनस आयोटा, जिसको हम लिखते हैं प्लस माइनस वन प्लस माइनस आयोटा। जी एक नॉन एम्प्टी सेट है, उसमें चार एलिमेंट है, प्लस माइनस वन प्लस माइनस आयोटा। स्टार और मल्टीप्लीकेशन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, और इसको हम फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी भी कहते हैं। जैसे वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसको फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी कहते हैं। आपको याद होगा कि हमने लास्ट जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े थे वहां पे डी मोरिस थ्योरम यूज करके nth रूट ऑफ यूनिटी फाइंड की थी। तो अगर उसमें n अगर हम 4 रख ले तो फोर्थ रूट मिलेगा, ये भी मैंने करवाया था। अगर 3 रखे तो क्यूब रूट मिलेगा। अब यहाँ इस स्टेज पे हमें वो करना नहीं है, मगर हमें ये पता हो कि फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी कैसे फाइंड होती है। ओके, अच्छा अब देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल fill each header by the element of the group and put group operation in upper। अब देखें पहले क्या रखेंगे, या मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन सारे एलिमेंट और फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में रख लिए हमने, बहुत इजी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखिए वन इंटू वन क्या हो जाएगा, वन, वन इंटू माइनस वन माइनस वन, वन इंटू माइनस आयोटा, वन इंटू आयोटा आयोटा, वन इंटू माइनस आयोटा माइनस आयोटा। पहले एलिमेंट के साथ हो गया, अब सेकंड एलिमेंट उठा ले, वन इंटू माइनस वन माइनस वन, माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन, माइनस वन इंटू आयोटा माइनस आयोटा, माइनस वन माइनस आयोटा, दिस इज प्लस आयोटा। Again take third element, iota minus iota, iota square equal to minus 1, iota multiply by minus iota square equal to plus 1. Again fourth element, minus iota and minus 1 minus iota, minus iota minus 1 plus iota, minus iota plus iota 1, minus iota is minus 1. Okay, this this is Kelly table. अब देखें from here you can easily check this Kelly table give us whole information about the group. Now here check first Cloyer property। ठीक है, हम पहले क्लोयर प्रॉपर्टी इसमें इजीली चेक कर सकते हैं। अब देखें इस पूरी टेबल में कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो ऊपर जी में ना हो। जी में कौन से एलिमेंट थे, वन माइनस वन आयोटा माइनस आयोटा। हमने हर एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करके देखा है। ठीक है, अब कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो उस जी से बाहर हो, इट मीन्स क्लोयर हो गया। नंबर सेकंड, नंबर से नंबर एसोसिएट होते हैं, नो नीड टू चेक। इनवर्स और आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मींस ऐसा एलिमेंट जो किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें वो एलिमेंट चेंज ना, वो वन है आइडेंटिटी। देखें वन को वन से किया सेम आया, वन को माइनस वन से किया वो भी सेम आ गया, वन को आयोटा से किया वो भी सेम आ गया, वन को माइनस आयोटा से किया वो भी माइनस आयोटा। इट मीन्स ये क्या हमारे पास वन आइडेंटिटी है। अब हर एलिमेंट का इनवर्स भी होना चाहिए ग्रुप के मुताबिक। अब वन का इनवर्स क्या है, वन ही है, क्योंकि वन को वन से मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी आ गई। अब माइनस वन का इनवर्स क्या है, वो भी माइनस वन है, क्योंकि माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन वी गेट वन। इट मीन्स वन माइनस वन का इनवर्स माइनस वन है। आयोटा का इनवर्स क्या है, आयोटा का इनवर्स माइनस आयोटा है, क्योंकि आयोटा और माइनस आयोटा को जब मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, आइडेंटिटी मिली। और माइनस आयोटा का इनवर्स क्या है, माइनस आयोटा का इनवर्स आयोटा है जब हमें। तो कैली टेबल बनाने के बेनिफिट क्या है, हम इजीली ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, फीचर्स है ऑफ कैली टेबल के। ठीक है, एवरी रो एंड कॉलम मस्ट कंटेन द आइडेंटिटी एलिमेंट because in a group every element has inverse. This property can be used to find the inverse of the element. ठीक है, तो it means
every row and every column must contain the identity element. अगर आप ऊपर देखें तो हर रो में ये क्या है, ये रो है, हर एलिमेंट हर रो में क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट जरूर होगा. दिस इज आइडेंटिटी, 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 आइडेंटिटी. और हर कॉलम में देखें दिस आइडेंटिटी, 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 आइडेंटिटी. हर रो या हर कॉलम में आइडेंटिटी एलिमेंट जरूर होगा जब हम कैली टेबल बनाएंगे. If the table is symmetric about diagonal, then group is abelian. If group is non-abelian, then table would not be symmetric. अब इसमें important है कि जो diagonal के एलिमेंट यूं हैं, अगर ये टेबल सिमेट्रिक होगी अबाउट डायगोनल तो ग्रुप एबलियन होगा. अब देखें, अब इस डायगोनल पे अगर हम लकीर मार लें तो जो एलिमेंट ऊपर है वही एलिमेंट नीचे है. देखें यहाँ से, अगर जो एलिमेंट ऊपर होंगे वही एलिमेंट क्या होंगे, नीचे होंगे. जैसे -1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे आयोटा है, माइनस आयोटा है, ये माइनस आयोटा है, तो ये ग्रुप क्या हो जाएगा, एबलियन. अगर डायगोनल से अगर सिमेट्रिक ना हो तो वो ग्रुप नॉन एबलियन होता है. ईच रो एंड ईच कॉलम कंटेन ऑल द ग्रुप एलिमेंट इन द सेम ऑर्डर. हर रो में और हर कॉलम में ग्रुप के सारे एलिमेंट सेम ऑर्डर में होंगे, चाहे वो रो हो चाहे वो कॉलम हो. देयर इज नो डुप्लीकेट और रिपीटेड एलिमेंट इन एनी रो. और ये याद रख लें, किसी भी रो में कोई भी एलिमेंट दो दफा नहीं आता. सही है. अब देखें, ये लास्ट रो थी ना, क्या है, माइनस आयोटा आयोटा 1 - 1. अब लास्ट कॉलम में भी यही ऑर्डर होगा. जो थर्ड रो में ऑर्डर है वही थर्ड कॉलम में होगा, जो सेकंड रो में है वो सेकंड कॉलम में होगा, जो फर्स्ट रो में है वो फर्स्ट कॉलम में. और कोई भी किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा. अगर रिपीट हो गया तो वो ग्रुप ही नहीं होगा. अब ये एग्जाम्पल देख लें कि अगर मल्टीप्लाई करें कैली टेबल तो इन जनरल हम इजीली इसमें प्रूफ कर सकते हैं. अब ये देख लें एग्जाम्पल नंबर 2. इफ G with binary operation is static is a group when G equal to 0. कोई ग्रुप है G, उसके एलिमेंट है 0 1 2 और उसमें बाइन. अब देखें, मैंने आपको बताया था बाइनरी ऑपरेटर जरूरी है कि एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, सब्ट्रैक्शन हो या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो. बाइनरी ऑपरेशन कोई भी हो सकती है जिसको आप डिफाइन करें. अब यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइन किया हुआ है कि अगर ए बी कोई भी दो एलिमेंट है, उसको जब हम बाइनरी ऑपरेट करेंगे तो रिजल्ट यू मिलेगा, मॉड ऑफ A - 2. जैसे 2 स्टार 5 करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 2 - 5 क्या बचा, -3. मॉड -3 क्या होगा, पॉजिटिव. ठीक है, तो ये डिफाइन है ऑलरेडी. नाउ चेक करें कि ये जी है, इस बाइनरी ऑपरेशन स्टार बाइनरी ऑपरेशन अगर हो तो ये ग्रुप बनाएगा या नहीं बनाएगा. ठीक है, पहले आप कैली टेबल बनाए 0 1 2 0 1 2. ठीक है, अब 0 को 0 से बाइनरी ऑपरेट करेंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यू होगा. अब 0 - 2 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2, क्योंकि मॉड -2 2 होगा, 1 ये 0 होगा, ये 1 - 1 अगेन 1 पॉजिटिव 2 1. अब कैली टेबल की अगर आपके फीचर्स पता हो तो आप यहीं से देख सकते हैं. पहली बात तो इस कैली टेबल में कोई ऐसा एलिमेंट है जो जी में ना हो, नहीं, सारे एलिमेंट वही है तो क्लोजर है. अब यहाँ पे देखें 0 1 2, यहाँ पे क्या है 1 0 1. अब देखिए एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे जो 2 है तो है ही नहीं. हर रो में सारे एलिमेंट होने चाहिए, तो इट मीन्स ये ग्रुप नहीं है. वो चेक कर ले किससे नहीं है. ठीक है, अब देखें, अब यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखें, 1 स्टैटिक 1 स्टैटिक 2, तो क्या होना चाहिए 1 स्टैटिक 1 into 2 अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिविटी. अब 1 स्टैटिक 1 मीन्स 1 - 1, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0 स्टैटिक 2. अब स्टैटिक 0 स्टैटिक 2 का मतलब है 0 - 2, तो 0 - 2 मीन्स पॉजिटिव. यहाँ पे आ जाए, पहले ये सॉल्व करें. 1 - 2 मीन्स 1, -1 मीन्स पॉजिटिव 1, 1 into 1 1. यहाँ पे रिजल्ट 0 आ रहा है, यहाँ पे रिजल्ट 2 आ रहा है, 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो इट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही. तो क्या होगा, ये ग्रुप नहीं है. क्योंकि अगर ग्रुप नहीं है, अगर एक प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई नहीं हो रही, इट मीन्स इट्स नॉट अ ग्रुप. और इसके अलावा इसकी आइडेंटिटी भी एक नहीं है, यूनिक नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी यूनिक होनी चाहिए. दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ ग्रुप.
अगेन सब ग्रुप क्या है? अगर जी ग्रुप है, उसकी बाइनरी ऑपरेशन स्टारिक है, तो कोई हम सबसेट ले लेंगे जी का, जिसको हम एच कहेंगे। अगर वो एच ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे विथ रिस्पेक्ट टू सेम बाइनरी ऑपरेशन ऑफ जी, तो उस एच को हम सब ग्रुप कहेंगे जी का। सही है, वेरी इजी। कोई सबसेट लेंगे जी का, जी क्या है? ग्रुप है, उसका बाइनरी ऑपरेशन स्टार है या स्टारिक है। अगर एच भी ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है सेम बाइनरी ऑपरेशन से, तो वो उसका सब ग्रुप होगा। सब ग्रुप को किस तरह से डिफाइन करते हैं? जैसे इवन नंबर फॉर्म सब ग्रुप ऑफ इंटीजर। अब सेट ऑफ इवन नंबर क्या है? ये सब ग्रुप है इसका, इंटीजर का, क्योंकि इंटीजर ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ऐसे ही सेट ऑफ इंटीजर सब ग्रुप है सेट ऑफ रियल नंबर का। अब बाइनरी ऑपरेशन क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, द ग्रुप ऑफ रियल मैट्रिसेस विद डिटरमिनेंट इक्वल टू 1, जो स्पेशल लीनियर ग्रुप हमने बनाया था, इज अ सब ग्रुप ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस बोथ इक्विप्ड विद मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। स्पेशल लीनियर ग्रुप क्या है? सब ग्रुप है जनरल लीनियर ग्रुप का। इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल हम इजीली चेक कर सकते हैं कि वो ग्रुप है। अच्छा, एवी ग्रुप जी ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन 1 हैज एटलीस्ट 2 सब ग्रुप। कोई भी ग्रुप होगा जी जिसका ऑर्डर 1 से ज्यादा हो, उसके एटलीस्ट 2 सब ग्रुप होंगे। एक क्या होगा? इट सेल्फ होगा सब ग्रुप। दूसरा क्या होगा? आइडेंटिटी होगी, क्योंकि हर ग्रुप में आइडेंटिटी होती है, तो उसका सब ग्रुप एक आइडेंटिटी होगा। और आइडेंटिटी ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, क्योंकि आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से ऐड करें तो आइडेंटिटी आएगी। और आइडेंटिटी का आइडेंटिटी क्या है? खुद आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का इनवर्स क्या है? खुद आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। अगर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगा तब भी, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन होगा तब भी। अगर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगा आइडेंटिटी 0 होगी। अगर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन होगा तो आइडेंटिटी क्या होगी? 1 होगी। तो कोई भी ग्रुप हो, उसके एटलीस्ट 2 सब ग्रुप होते हैं, एक आइडेंटिटी होती है, एक सेल्फ होता है। और इन सब ग्रुप को हम कहते हैं ट्रिवियल सब ग्रुप। क्या कहते हैं? ट्रिवियल। और इन दोनों सब ग्रुप के अलावा और सब ग्रुप जितने भी बनेंगे उनको हम कहते हैं नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप। ठीक है, सब बुक में सिर्फ ई को ट्रिवियल सब ग्रुप क्या कहा गया है, मगर काफी बुक्स में ये लिखा हुआ है कि अगर ई और ग्रुप इटसेल्फ, ये 2 सब ग्रुप, इनको ट्रिवियल कहते हैं, और बाकी जो सब ग्रुप बनेंगे उनको नॉन ट्रिवियल कहेंगे। ट्रिवियल या प्रॉपर। अच्छा, इफ एच सब ग्रुप है जी का एंड के सब ग्रुप है एच का। एच क्या सब ग्रुप? जी का। और के क्या है? सब ग्रुप एच का। देन के सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, अगर एच सब ग्रुप जी का है, जी, और के सब ग्रुप एच का है, तो क्या होगा? के सब ग्रुप होगा जी का। ठीक है, तो ये